Okay, great. So, welcome aboard. Atikur Rahman here, and I hope that everyone is fine and doing good. So, we are here for our a very interesting session and one of the key subject of your CFAB level, that is strategy and performance measurement, which was earlier known as business management and strategy. Moin, I hope you may hear me now. अगर बाकियों को आवाज आ रही है तो फिर सबको जानी चाहिए सो एसपीएम और बीएमएस इसका खैर मैंने एक क्विक सा कंटेंट शेयर किया था आपके साथ जिसमें आई कंपेयर्ड द टू सब्जेक्ट्स क्विकली एंड आई डेवलप्ड small roadmap in which I tried to explain that what are the differences in the new subject, especially those students जिन्होंने BMS को पहले पढ़ा है, BMS को पहले उन्होंने स्टडी किया है और now they have to attempt their exam in June, let's say probably, or in December this year. So they might be a bit more confused that how to go about it, how much content has been changed, how much content has been altered. So उस हवाले से मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था. Otherwise, those students who are just fresher in this course, who are just going to take this subject for the very first time, they of course are going to go with strategy and performance management measurement. They need not to concern, they must not be concerned about business management and strategy, right? Anyhow, so आज का हम जो lecture है उसे introduce करेंगे by understanding the grid of the subject as a whole. हमारा जो subject है उसकी grid क्या है और grid के अंदर core areas कौन कौन से हैं और उसके अंदर किस किस तरह से chapters जो हैं वो divided हैं. So we will be quickly reviewing the grid first of all, and then we will looking at a roadmap based on which we are going to take along this subject. हम एक road map discuss करेंगे और उस road map के through हम define करेंगे कि हम इस subject को कैसे लेके चलेंगे, right? So the file is being loaded. I will request a couple of moments, right? In the meantime, the file may be loaded. Just hold on for a moment. जी जी जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट प्लीज. मैं वीडियो हमने पॉज की हुई है. जस्ट अ कपल ऑफ मोमेंट्स. आई एम जस्ट लोडिंग अ फ्यू फाइल्स. आई एम राइट हियर, डोंट वरी. ठीक है जी. वीडियो इस वक्त पॉज्ड है इसलिए यू माइट नॉट बी एबल टू सी मी. जस्ट होल्ड ऑन प्लीज. जस्ट होल्ड ऑन. राइट, थैंक यू.
जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी मेरी? आई होप दैट नाउ यू कैन see me and hear me properly. I'm so sorry for the glitch. Actually, I had to load some files in the IT system. So for that reason, बुक की क्वेरी आ रही है. डेफिनेटली बुक इज अंडर वे. बुक भी इंशाल्लाह जल्दी अवेलेबल हो जाएगी. And we are working on it as well. So everything will be streamlined, don't worry. For now, we are just going to open up our discussion by looking at the overall grid of the subject. नहीं, so strategy and performance measurement, right? Strategy and performance measurement. बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी और एसपीएम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. इसके अंदर मैक्सिमम जो कंटेंट ऐड हुआ है दैट इज अराउंड 5 to 7%, राइट. ग्रिड में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं. ग्रिड के अंदर वीडियो लैग हो रही है. ग्रिड में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं. ग्रिड के अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने कंसोलिडेट की हैं. कुछ एक नया पोर्शन ग्रिड के अंदर ऐड किया है. और चैप्टर बाय चैप्टर हम ग्रिड को भी अभी डिस्कस करते हैं. वी विल लुक एट द ग्रिड चैप्टर बाय चैप्टर. जी, एनी बेटर? एनी बेटर? Am I audible? Am I visible? Okay, thank you very much. Jazakallah. So we will have a quick look at the syllabus grid first. पहले भी किताब में 20 चैप्टर्स थे, अभी भी किताब में 20 चैप्टर्स हैं. ठीक है, पहले भी स्ट्रैटेजी का पोर्शन और जो रिमेनिंग कंटेंट की जो डिटेलिंग थी अभी भी वो मोर और लेस वैसे ही है. So the main thing in which ICAP has brought some changes is that they have shuffled a few chapters. कुछ chapters को shuffle किया गया है. कुछ chapters के अंदर कुछ नए contents add किए हैं. कुछ contents eliminate कर दिए हैं. So one way or the other cosmetic changes हैं subject के अंदर. कोई बहुत ज़्यादा transformational changes नहीं है. तो when you look at the grid, so grid का जो पहला component है, जो पहला part है grid का, that is strategy formulation and strategy implementation. जो strategy है इसका जो पहला component है, जिस तरह पहले होता था strategy का जो component था strategy formulation and implementation, तो यहाँ भी पहला part same है. आपकी strategy की formulation क्या है और strategy की implementation क्या है. Formulation and implementation of strategy. 20 चैप्टर्स हैं बुक के, जिनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है विद सम रिस्पेक्टिव वेटेज एलोकेटेड टू ईच पार्ट, राइट. फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, ये आपकी ग्रिड का पहला हिस्सा है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रिड. ये पहला हिस्सा जो है ये पेपर में टोटल, यहाँ पे इसकी वेटेज हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल पार्ट की, और यहाँ पे हम इसके चैप्टर्स नोट कर लेते हैं कि इस पार्ट में कितने चैप्टर्स हैं. तो जो पहला पार्ट है ये पेपर में तकरीबन 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता है. परसेंटेज 25 to 30% कंट्रीब्यूट करता है आपके एग्जाम के अंदर, ये पहला पार्ट, राइट. और इसके जो टोटल चैप्टर्स हैं आपकी किताब में, स्ट्रेटजी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. स्ट्रेटजी पोजीशन, स्ट्रेटजी चॉइस एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन. 3 कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेटजी के, और ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ये कलेक्टिवली आपकी किताब में पहले 7 चैप्टर्स में कवर किए जा रहे हैं. दे आर बीइंग कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1 to 7, पहले 7 चैप्टर्स. अब ICAP ने एक खुशाइंद बात यह है कि ICAP ने चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन कर दी. लाइक BMS के अंदर चैप्टर्स बड़े हॉच पॉच थे. डिफरेंट कंटेंट्स जो हैं वो डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर प्लेस थे. चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट कंटेंट्स जो हैं वो डिफरेंटली प्लेस किए गए थे. नाउ व्हाट ICAP हैज डन इज दैट दे हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड द फ्लो ऑफ द सब्जेक्ट एज अ होल. ICAP ने सब्जेक्ट के फ्लो को थोड़ा सा बेहतर कर दिया. तो पहला पार्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, दैट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 25 to 30% इन योर एग्जामिनेशन, और पहले 7 चैप्टर्स आपकी किताब के इस पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. दूसरा पार्ट अगेन पहले भी था अब भी है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी ऑफ IT. मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी ऑफ IT की
अच्छा, स्ट्रैटेजी का जब यहाँ पे आईटी के साथ उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप किया है तो यहाँ पे एक कंपोनेंट रिस्क का ऐड कर दिया है, लाइक रिस्क हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो रिस्क है दैट हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर टोटल अब 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स कवर होते हैं और पेपर में इसकी जो वेटेज है वो 10 to 15% है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इसके अंदर, एक इसमें आईटी कवर हो रही है और दूसरा इसमें रिस्क कवर हो रहा है। रिस्क मैनेजमेंट का बड़ा क्लोज रिलेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के साथ। आईटी के डिफरेंट टूल्स को हम यूज़ करते हैं रिस्क को अप्रोप्रिएटली हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। सो आईटी का जो कंटेंट है उसके साथ रिस्क के कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एसोसिएट कर दी गई है। चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 अगले 3 चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 अगले 3 चैप्टर्स इस कंटेंट को कवर करेंगे। दे विल कवर दिस पर्टिकुलर कंटेंट। चैप्टर नंबर 8 और 9 रिस्क के ऊपर है और चैप्टर नंबर 10 जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस। और टोटल वेटेज इसकी एग्जाम में होती है तकरीबन 10 से 15%। लाइक कलेक्टिवली अगर आप देखें तो आपकी किताब का जो 50% कंटेंट है ये आपके पेपर में मैक्सिमम 45% तक कंट्रीब्यूट करेगा। 50% जो किताब का आपका टोटल कंटेंट है वो अप टू 30 + 15 ये आपका टोटल 45% तक कंट्रीब्यूट करेगा और जो रिमेनिंग 50% है वो अप टू 55% कंट्रीब्यूट करेगा। दैट विल कंट्रीब्यूट अप टू 55, लाइक मैक्सिमम 55%। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट जो है हमारा दैट इज एचआर, सप्लाई चेन and marketing. Now this is where the difference has actually been introduced. BMS में marketing और supply chain used to be one part and HR used to be a separate part. अब उन्होंने HR, supply chain और marketing को consolidate करके एक portion बना दिया है, एक हिस्सा बना दिया है इसका। So they have consolidated human resource management, supply chain management and marketing and that has become one part. इस एक part की पेपर में वेटेज जो है वो 25 से 30 नंबर की है, अगेन 25 to 30 मार्क्स, राइट। और इसकी जो टोटल चैप्टर्स जो इस पार्ट को कवर कर रहे हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11 अप टू 15, 11 to 15, 5 चैप्टर्स पेपर में 25 से 30 नंबर। ना जस्ट लुक एट द डिफरेंस, ये 7 चैप्टर्स हैं और ये पेपर में 25 से 30 नंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये 5 चैप्टर्स हैं और ये पेपर में 25 से 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दिस makes it very evident that where to put more weight. This is very important portion. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ओवरऑल पेपर को पास करने की तरफ, राइट। सो अच्छा, पार्ट डी जो है दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। नाउ दिस पार्ट वाज नॉट अर्लियर, ये पार्ट पहले नहीं होता था। परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे पहले बात नहीं होती थी जरूर, बट परफॉर्मेंस मेजरमेंट अर्लियर यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट पहले स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता था, इट वाज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। नाउ दे हैव डिसीजन मेकिंग का। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं जी कितनी फाइनेंस ऐड कर दी है, तो सिर्फ रेशियो एनालिसिस की हद तक फाइनेंशियल ऐड की है, सिर्फ रेशियोज जो हैं, और वो भी कैलकुलेट नहीं करनी। रेशियोज जो हैं वो भी कैलकुलेट नहीं करनी। रेशियोज आपको शायद दी जाएंगी, आपने उनकी बेस पे डिसीजन मेकिंग आपने बतानी। यू हैव टू मेक वेरियस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो ऑफ कोर्स पहले भी आप लोग पढ़ते आए हैं, दोबारा भी आप इसको देखेंगे। इसमें आपके पास प्राइमरीली 2 चैप्टर्स हैं। इसमें आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, 16 एंड 17, 16 और 17। और इसकी टोटल वेटेज जो है पेपर में, इस पार्ट की टोटल वेटेज है पेपर में दैट इज 15 to 25%, 15 से 25% इसकी वेटेज है पेपर में। और आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? इफ आई एम ऑडिबल एवरीवन, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? ओके गुड, थैंक यू वेरी मच। इस पार्ट की वेटेज है पेपर में 15 से 25 नंबर की और 16 और 17वां चैप्टर इसके अंदर पाया जाता है। एंड देन वी हैव द लास्ट पार्ट, एथिक्स एंड सीएसआर। अगेन जिस तरह पहले किताब में होता था, मैं एक्चुअली बीएमएस का भी रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो ऑलरेडी बीएमएस पढ़ के आ रहे हैं पहले, या कम से कम बीएमएस को एक दफ़ा ब्रश कर चुके हैं।
तो अब वो पेपर एसपीएम का देंगे तो उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं। तो जो लोग पहली दफ़ा बिजनेस सीफैब का ये कोर्स पढ़ रहे हैं, दे कैन ऑफ कोर्स जस्ट इग्नोर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बीएमएस। लेकिन जो लोग बीएमएस और एसपीएम का कंपैरिजन भी चाहते हैं, उनके लिए फिर मैं बीच में कहीं ना कहीं, और ये सिर्फ आज के लेक्चर की हद तक है, बाकी हम थ्रू आउट स्ट्रेट अवे फ्रॉम द स्क्रैच ही डिस्कस करेंगे चीज़ों को। CSR प्लस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, आखिरी पोर्शन है, सेम एज इट वाज प्रेजेंटेड अर्लियर। और ये वाला पोर्शन काफ़ी हद तक आप अपने ऑडिट के सब्जेक्ट में और अपनी एडवांस रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में भी आप ये वाला पोर्शन जो है वो कवर कर लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स जो है काफ़ी हद तक आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कवर हो जाते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज कम कर दी है। पहले इसकी वेटेज होती थी तकरीबन 20 मार्क्स की, अब इसकी वेटेज कर दी है 10 से 15 नंबर की। तो इस पार्ट की वेटेज कम कर दी है, थोड़ी सी वेटेज इस पार्ट से निकाल के यहाँ डाल दी है और थोड़ी सी वेटेज यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दी है। तो एक सेपरेट पार्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया है, एक सेपरेट पार्ट आपको ऑफर कर दिया है। और इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स कवर होते हैं, 18 to 20, 18 से 20। तो चैप्टर्स का फ्लो अब बड़ा अच्छा हो गया, लाइक इस पर्टिकुलर आई कैप की स्कीम में चैप्टर्स का फ्लो बड़ा अच्छा हो गया, स्ट्रेट अवे चैप्टर अब एक फ्लो में आ रहे हैं। वरना अर्लियर कोई चैप्टर किसी पार्ट का जो है वो किसी जगह पे पड़ा हुआ है, कोई चैप्टर किसी पार्ट का किसी जगह पे पड़ा हुआ है, राइट। सो पहले ऐसा होता था कि चैप्टर्स का फ्लो इतना कोई ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर नहीं होता था, बट नाउ इट हैज बीन मेड श्योर दैट द फ्लो ऑफ द चैप्टर इज नाउ वेरी नाइस एंड वेरी गुड, राइट। तो यस, पहले स्ट्रेटजी का जो पोर्शन है ये स्प्लिट था डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, 14 चैप्टर भी था, 15 चैप्टर भी था, डिफरेंट चैप्टर्स में स्प्लिट था। अब उन्होंने थोड़ा सा इसको बेहतर कर दिया है, दे हैव एक्चुअली ट्राइड टू इम्प्रूव इट इन अ बेटर वे, राइट। सो वन वे और द अदर आई हैव एक्चुअली लाइक्ड दिस एफर्ट जो आई कैप ने एसपीएम के लेवल पे डेवलप की है। बुक भी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी। बाय द टाइम जब तक बुक नहीं आती आपको मैं हैंडआउट्स मुहैया करता रहूँगा बेटा। मैं आपको मैं आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट, मैं आपको हैंडआउट्स देता रहूँगा चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। फिर जैसे ही बुक वैसे बुक अवेलेबल है ऑलरेडी, जो हमारी एसपीएम की जो किताब है वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे पैक में अवेलेबल है। उसमें मैंने चेंज नोट्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंस्टेंट किताब चाहिए, अगर आपको इंस्टेंट किताब चाहिए तो आप बुक यहाँ से मंगवा सकते हैं। यू हैव द बुक अवेलेबल। इसमें चेन नोट्स मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं सारे के सारे। तो रेडीली बुक इज अवेलेबल, बट इफ यू पीपल वांट, ऑफ कोर्स मैं आपको साथ साथ कुछ ना कुछ हैंडआउट्स भी इसके मुहैया करता रहूँगा ताकि आपका लर्निंग प्रोसेस चलता रहे। So what we need to cover in this syllabus is we need to cover some core areas of strategy. We have to cover strategic management process. Strategic management process ये पहला एरिया है। प्लस वी हैव टू कवर सम कोर बिजनेस फंक्शंस, हमें बिजनेस फंक्शंस को कवर करना है, मार्केटिंग, एचआर, सप्लाई चेन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। बस वेल फर्स्ट एडिशन अब ऑब्सोलीट हो गए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सबसे इंपॉर्टेंटली उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले एडिशन के अंदर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, तो फर्स्ट एडिशन इज नाउ अ बिट ऑब्सोलीटेड, ठीक है। गो फॉर सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन इज एसपीएम, ठीक है। सेकेंड एडिशन इज फाइन, राइट। आई कैप की बुक के अंदर एज ऑलवेज, आई कैप की बुक के अंदर बहुत सारा कंटेंट अननेसेसरी होता है विच आर जस्ट पेज फिलर्स मेकिंग नो सेंस एट ऑल, और उसके बगैर भी बेहतर तौर पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। तो वो जो पेज फिलर्स होते हैं मैं उनको एलिमिनेट करने का ख्वाहा होता हूँ, और मैं अपनी किताब में हमेशा चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप आई कैप को भी बेंचमार्क कर सकते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स प्योरली योर चॉइस, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू इफ यू वांट टू डू दैट। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा रीडेबिलिटी का इशू होता है। आई कैप की किताब में इट इज ऑलवेज अ चैलेंज ऑफ रीडेबिलिटी। आई कैप की किताब की जो रीडेबिलिटी होती है वो कोई इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बाज़ दफ़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो पहला पोर्शन है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, दूसरा पोर्शन है हमारा बिजनेस के कोर फंक्शंस, बिजनेस के कोर फंक्शन, तीसरा पोर्शन है हमारा परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। बिजनेस की परफॉर्मेंस फाइनेंशियल भी होती है, नॉन फाइनेंशियल भी होती है। और चौथा पोर्शन है हमारा CSR एंड एथिक्स। तो कलेक्टिवली अगर ब्रॉडली देखा जाए तो हमारे सब्जेक्ट जो है उसके टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं, आप इनको कंपोनेंट्स कह लें। आप इनको बिजनेस फंक्शंस के अंदर मैंने बेसिकली सारे फंक्शंस को एक्यूमुलेट कर दिया, मैंने आईटी को भी बिजनेस फंक्शन का हिस्सा बना दिया, ठीक है। तो अगर आप ग्रिड को देखें तो 5 पार्ट्स हैं, लेकिन अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें तो आपके 4 कंपोनेंट्स।
ठीक है, ये चारों कंपोनेंट्स अलाइंड हैं ग्रिड के ऊपर ही, ये एक अलग पार्ट है ग्रिड का, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रिड, बिजनेस फंक्शंस आर सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द ग्रिड, ये फोर्थ पार्ट है ग्रिड का, और ये फिफ्थ पार्ट है ग्रिड का। तो ये बेसिकली ग्रिड के पार्ट्स ही हैं, ये आपके ग्रिड के पार्ट्स ही हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इन पार्ट्स को हमने पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, इन पार्ट्स की हमने अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करना है, हाउ आर वी गोइंग टू यू नो मेक श्योर दैट द थिंग्स गो इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। वेल, हमारी कोर्स कंप्लीशन डेडलाइन होती है अप्रैल 30 अप्रैल को। जून में अगर आपका पेपर है तो 30 अप्रैल को हम अपना कोर्स कंप्लीट करने के काबिल हो जाएंगे टाइमली इंशाल्लाह। कुछ शुरू में क्लासेस हमारी रेगुलरली 90 मिनट्स की चलेंगी, फिर होपफुली इन द मंथ ऑफ लाइक फरवरी मिड आफ्टरवर्ड्स हम हाँ हाँ ऑफ कोर्स देखें, ईद बनेगी मई के फर्स्ट वीक में, ईद से तो कंफर्टेबली पहले लाइक आखिरी अशरा ऑफ रमज़ान जो है उसमें हमारा कोर्स कवर हो जाएगा। प्रॉबेबली रमज़ान शुरू हो रहा है 6 अप्रैल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रॉबेबली हमारा जो ईद है वो मई के फर्स्ट वीक में आएगी वाले से पहले पहले इंशाल्लाह, हाँ 2 अप्रैल, यस वही, मतलब ईद से बिल्कुल पहले, राइट। तो मिड फेब तक क्लासेस हमारी थोड़ी सी इसी फॉर्मेट पे चलेंगी, 90 मिनट्स 2 डेज अ वीक, और मिड फेब के बाद हम क्लासेस का जो टाइम है वो थोड़ा सा इन्हेंस कर लेंगे, और हम क्लासेस का टाइम जो है उसको अकॉर्डिंगली कोर्स कवरेज के मुताबिक सेटल करेंगे। ठीक है जी। ग्रिड के हवाले से कोई सवाल, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रिड, एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड फ्रॉम द ग्रिड? सब्जेक्ट के स्कोप के हवाले से कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट? Okay, so we will be starting off with strategic management process. हम स्टार्ट करेंगे strategic management process। ठीक है। What is the nothing is hardest about SPM. The most important thing बेटा फातिमा is कि आप चीज़ों को एक लॉजिकल फ्लो में देखें। Do not just read the topic, वो कहते हैं ना टॉपिक बाय टॉपिक ना पढ़ें, टॉपिक बाय टॉपिक ना पढ़ें, जी पैक में बुक अवेलेबल है ऑलरेडी। टॉपिक बाय टॉपिक ना पढ़ें, बल्कि टॉपिक का एक लॉजिकल फ्लो मेंटेन करें, और कीवर्ड्स के साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। अभी रिसेंटली एग्जामिनर ने ये बेंचमार्क सेट कर दिया है कि 100% पेपर जो था आपका दिसंबर अटेम्प्ट का, दैट वाज सिनेरियो बेस्ड। दिसंबर अटेम्प्ट का 100% पेपर जो था वो सिनेरियो बेस्ड था, उसमें नॉलेज बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं था। सो दैट वाज एन इंडिकेशन कि अब एग्जामिनर आहिस्ता आहिस्ता इसका जो लेवल ऑफ इवैल्यूएशन है वो चेंज कर रहा है, रादर देन जस्ट पुटिंग अ पेपर इन टर्म्स ऑफ सम नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। अब आपको सिनेरियोज पे लेके जा रहा है, और मॉडल्स, फ्रेमवर्क्स और थेरीज, राइट, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर, पेपर को पास करने के लिए। सो पहला जो पार्ट है हमारा वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, द फर्स्ट पार्ट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, हाँ ऑफ कोर्स हर सब्जेक्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बिल्ड हो रहा है सिनेरियो बेस का। नहीं, नो नो बेटा, ऐसा नो, इट इज नॉट, मतलब आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट नाउ फॉर ऑलमोस्ट 6 years। 2016 दिसंबर अटेम्प्ट, जो पहली अटेम्प्ट थी BMS की, CFAP की, आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस देन। उससे पहले मॉड्यूल ई में पढ़ाया करता था BM। तो ये वाला सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट का मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 11 साल हो गए, ऑलमोस्ट 11 years, almost 4 to 5 years I have taught BM module E, and for the last 6 years I have been teaching this BMS and now SPM, and I have not encountered a single student who can claim कि जी मैंने सिर्फ क्रैमिंग करके पेपर पास किया without understanding it, no not at all। क्रैमिंग नहीं होती, मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब होता है कि आपने कम से कम कीवर्ड्स को याद रखना है ताकि आपकी राइटिंग में फ्लो बहाल हो। अगर मेमोरी ही काम नहीं करेगी तो हाउ वुड यू बी एबल टू कम अप विद अ लॉजिकल फ्लो इन योर राइट अप? लेकिन सिर्फ क्रैम करके, हाँ ठीक है, मॉड्यूल ई में किसी जमाने में लाइक 8 से 10 साल पहले की बात अगर की जाए, तो मॉड्यूल ई में किसी जमाने में देयर वाज अ टाइम माइट बी दैट पीपल यूज्ड टू पास द पेपर जस्ट बाय रॉट लर्निंग, क्योंकि उस वक्त किताब तो आएगा आपकी भी नहीं होती थी, उस वक्त सिर्फ पास पेपर्स होते थे और बड़े बेसिक लेवल क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन सिंस CFAP 2016 दिसंबर ऑनवर्ड्स आई हैव नेवर मेट अ सिंगल स्टूडेंट हु कुड क्लेम कि जी मैंने रट्टा मारा और मैं पास कर गया, नो नॉट एट ऑल।
कीवर्ड्स, हाँ मेमोरी का रोल होता है, मेमोरी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेमोरी को आपने मतलब शामिल हाल रखना है। उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना इफेक्टिवली आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस वीक होगी पेपर अटेम्प्ट करना आपके लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। सो प्रैक्टिस का आपने ख्याल रखना है। मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। हम इंस्टेंटली एक टॉपिक को कंप्लीट करके उसकी पास पेपर डिस्कशन पे चले जाया करेंगे। दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन माय स्टूडेंट्स अर्लियर, दोज पीपल हु हैव स्टडीड फ्रॉम मी अर्लियर, दे नो द मोड ऑफ टीचिंग, दैट द वे आई लीड द क्लास। हम एक टॉपिक को कवर करेंगे और इंस्टेंटली हम उसका एग्जाम फोकस डिस्कस करेंगे। जो लोग प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं करते अनफॉर्चुनेटली वो लोग एग्जाम में जाके थोड़ा सा चैलेंज का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होती है, राइटअप अच्छा होता है, ठीक है ना। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बिफोर जंपिंग ऑन टू द टॉपिक, इट्स जस्ट बेसिक काउंसलिंग एज वेल। मैं कहता हूँ कि ये वाला सब्जेक्ट पास करना 3 चीजों पे के ऊपर बेस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, पढ़ें और समझें। नंबर 2 कंसेप्चुलाइज, अंडरस्टैंडिंग के बाद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, कंसेप्चुलाइज करें, लाइक लॉजिकल लर्निंग करें। एंड नंबर 3 मेमोराइज। ये 3 कीवर्ड्स पल्ले से बांध लें, ये मैजिकल कीवर्ड्स हैं 3, ये पल्ले से बांध लें, ये पेपर पास कराएंगे आपको। अंडरस्टैंड, कंसेप्चुलाइज, मेमोराइज। रीड द टॉपिक, अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज बीइंग सेड टू यू। कंसेप्चुलाइज करें मींस उसको कनेक्ट करें रियल वर्ल्ड के साथ। दिस इज वेयर द सिनेरियो बेस इज गोइंग टू हेल्प इन कंसेप्चुलाइजेशन। यहाँ पे सिनेरियोज आपकी हेल्प करेंगे। एंड देन मेमोराइज। जी बिल्कुल, टेस्ट रेगुलरली कंडक्ट होंगे, वीकली टेस्ट कंडक्ट होंगे, चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट हमारे। हर चैप्टर हम कंप्लीट करके उसका इंस्टेंटली हम टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे। सो टेस्ट आर गोइंग टू बी कंडक्टेड रेगुलरली। टेस्ट इंशाल्लाह सारे के सारे रेगुलरली कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट आपके रेगुलरली कंडक्ट होंगे, राइट। सो जंपिंग टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। पहला पिलर हमारा 7 चैप्टर इसमें कवर होते हैं और इस पहले पिलर में हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पिरामिड की बात करते हैं। स्ट्रेटजी पोजीशन, स्ट्रेटजी चॉइस एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। 3 पिलर्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। आपकी करंट पोजीशन क्या है, ऑप्शंस क्या है स्ट्रेटजीज की, और आप किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटजीज को। आपकी किताब के पहले 4 चैप्टर्स पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं, 5 and 6 चैप्टर चॉइसेस को एक्सप्लेन करते हैं, और 7 चैप्टर इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो पहले 7 चैप्टर्स हमारे इस पिरामिड को कवर करेंगे। First 7 chapters will be fairly covering this pyramid. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के पिरामिड के 3 पिलर्स हैं। स्ट्रेटजी पोजीशन, फॉर एग्जांपल पोजीशन मींस नोइंग योर करंट स्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल सुजुकी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये बहस चल रही है कि जी एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की जाए जो BMW को कम्पीट करे, या कोई ऐसी गाड़ी लॉन्च की जाए जो फेरारी को कम्पीट करे। अब सुजुकी को सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी की पोजीशन समझनी पड़ेगी कि ये जो वो सोच रहे हैं क्या ये डुएबल भी है या नहीं है, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, क्या उनके एनवायरनमेंट सूटेबल है, क्या उनके जो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो उनको अलाउ करेंगे, क्या कंपटीशन उनको अलाउ करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। जी अभी हमारे इसके ऊपर फातिमा, आई एम जस्ट गिविंग अ वर्ड्स आई व्यू टू द टॉपिक, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इट विल कम आफ्टर सम टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन स्ट्रेटजी। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको एक ब्रॉड सा एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर गोइंग टू मूव अबाउट। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि नहीं भाई हम तो फरारी के लेवल की गाड़ी नहीं बना सकते, फिर हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ कार वी शुड प्रोड्यूस, दे नीड टू ले डाउन सम एक्शंस, सम चॉइसेस। उनको कुछ चॉइसेस फॉर्मुलेट करनी है, उनको कुछ चॉइसेस बनानी है, और फिर उसमें से 1 या 2 चॉइसेस वो इंप्लीमेंट करेंगे, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे। तो इस तरह से वो अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के काबिल हो जाएंगे। सो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है, स्ट्रेटजी पोजीशन, ये हमारा पहला टॉपिक है, और ये पहला टॉपिक है, ये हमारे पहले चैप्टर में आता है। और पहला चैप्टर जो है हमारा, आपको हर चैप्टर के शुरू में इस तरह का एक माइंड मैप मिलेगा, इसे माइंड मैप कहा जाता है। माइंड मैप जो होता है ये पूरे चैप्टर को इनकैप्सुलेट करने में आपकी मदद करता है। यू आर एबल टू डाइजेस्ट द होल चैप्टर इन अ स्नैपशॉट।
ये माइंड मैप्स जो हैं ये बड़े हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इन माइंड मैप्स को रिव्यू करना, इनको समझना, इनको पढ़ना। इससे पूरा चैप्टर जो है वो आपकी जिस्ट में आ जाता है, आप उसे जल्दी से क्विकली आप पूरे चैप्टर की एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली 6 हिस्सों में। पहला हिस्सा बेसिक्स है, स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन, स्ट्रैटेजी के कोर कंपोनेंट्स। हाँ, कोई चेंज नहीं है फर्स्ट चैप्टर में, कोई चेंज। मैंने पहले कहा कि पहले 7 चैप्टर्स में, 7 चैप्टर में स्लाइड से चेंजेस हैं, अदरवाइज पहले 6 चैप्टर्स में कोई चेंज एज सच नहीं है, नॉट मच चेंज इन द फर्स्ट 6 चैप्टर। 7 चैप्टर में स्लाइड सा चेंज है, मतलब 1 2 3 एंड 4 ये तो 100% सेम है ना। 5 एंड 6 के अंदर कुछ कंटेंट आगे पीछे हुआ है, कुछ शफल हुआ है जी। मैं इंशाल्लाह पीडीएफ शेयर करूंगा आपके साथ, ऑफ कोर्स आई विल डू इट। आपको पीडीएफ फाइल्स इनकी, इन चैप्टर्स की मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये पहला जो पार्ट है ये बेसिक्स आपको बताता है, स्ट्रेटजी की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेटजी के लेवल्स क्या हैं, प्लानिंग क्या होती है। फिर एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रेटजी का जो प्रोसेस है उसके 3 एलिमेंट्स हैं, पोजीशन, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन। फिर हम एक नट शेल में हम इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू करेंगे, लाइक हम पहले 7 चैप्टर्स का एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे इन एलिमेंट्स के अंदर। पहले चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस और मिशन डिस्कस किया जा रहा है। एनवायरमेंटल एनालिसिस आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर में है। रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज आपका चौथा चैप्टर है। इसी तरह चॉइसेस में डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज, ग्रोथ स्ट्रेटजीज, ये सारी 5th और 6th चैप्टर में कवर की जा रही है। इसी तरह स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग, एनेबलिंग एंड चेंज, ये सारा कुछ 7 चैप्टर के अंदर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको एक बड़ा बर्ड्स आई व्यू दे रहा है। नॉट रिसेंटली, इन समर 2016 में एग्जामिनर ने इस पूरे प्रोसेस पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था, बड़ा ओपन एंडेड सा क्वेश्चन था, दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशंस मेक देयर स्ट्रेटजी मोर इफेक्टिव। ठीक है, इसके ऊपर एग्जामिनर ने बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन पूछा था। तो ये 9 नंबर का एक सवाल आया था समर 19 में, जिसमें ये पूरा प्रोसेस आपको ब्रीफ करना था, इनकैप्सुलेट करना था। खैर अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स, इस तरह के वेग क्वेश्चन या ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं आते। अब बड़े क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चंस आते हैं, सिनेरियो दिया जाता है, मॉडल का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि इस मॉडल को सिनेरियो पे अप्लाई कर। There was a time when examiner used to ask very blur questions, very vague question, जिसका आंसर जो है वो खुद से कंस्ट्रक्ट करना होता था, बहुत मुख्तलिफ थॉट्स को कंसोलिडेट करके। For the last few attempts, I've been observing इस तरह के क्वेश्चंस अब पेपर में नहीं आ रहे, but you never know when ICAP can ask such a question again. तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपको इस तरह का सवाल पेपर में ऑलरेडी आ चुका है बैक इन समर 2016। फिर हम कहानी शुरू करेंगे स्ट्रेटेजिक पोजीशन की, और पोजीशन की कहानी स्टार्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और मिशन से। ये यहाँ से अब यहाँ तक, ये अब आपका पहला पिलर शुरू हो गया स्ट्रेटजी पोजीशन का, जो कंटिन्यू होगा अप टू 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, चौथे चैप्टर तक कंटिन्यू होगा। ठीक है, पहले चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस पढ़ेंगे, स्टेक होल्डर्स पढ़ेंगे, इंटेंडेड और इमर्जेंट स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे और फ्यूचर बेसिंग पढ़ेंगे। सेम कंटेंट है, कोई चेंज नहीं है, बीएमएस के अंदर भी यही कंटेंट्स मौजूद है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं ये आप लोग, मैं ख्याल है ऑल ऑफ यू हैव क्लियर्ड योर बीएमबीएस, राइट? आप सब लोग बीएमबीएस पढ़ के आ रहे हैं। कोई आप में से इतना पुराना तो नहीं हो सकता जो कहे जी मैंने बीसीबीएस पढ़ा था मॉड्यूल डी में। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स बीएमबीएस के ही होंगे, कैफ लेवल पे आप सब ने बीएमबीएस पढ़ी होगी, राइट? तो बीएमबीएस के अंदर आपने स्टेक होल्डर का टॉपिक पढ़ा हुआ है। बीएमबीएस के अंदर आपने ये हायरार्की पढ़ी हुई है, मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स की। रिमेंबर दैट, विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हाँ पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर होगा, कोई नहीं, पैसिव मेमोरी में है, हम निकाल के उसे एक्टिव मेमोरी में ले आएंगे, दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। लेकिन ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, ये आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। गोल ऑब्जेक्टिव का फर्क क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ आपने पढ़ा था, राइट? तो ये कम से कम दोनों पोर्शंस जो हैं ये नए नहीं हैं आपके लिए, ये बीएमबीएस में आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अब हम इसको स्ट्रेटजी के साथ कनेक्ट करेंगे, बिकॉज दे एट लार्ज दे आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन। एट लार्ज दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी पोजीशन। तो वहां हमने इनको बड़ा आइसोलेटेड मैनर में पढ़ा था 7 चैप्टर के अंदर बीएमबीएस में। ये 7 चैप्टर में था और ये था 3rd चैप्टर में। तो वहां हमने बीएमबीएस में इसको बड़ा आइसोलेटेड मैनर में पढ़ा था। अब तो खैर बीएमबीएस भी अल्लाह को प्यारी हो गई, अब तो कैफ लेवल पे बीएमबीएस शहीद हो गई और बीएमबीएस को स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में। एक उसका हिस्सा कैफ लेवल पे रिटेन कर दिया, थोड़ा एडवांस लेवल का, और एक हिस्सा उसका पीआरसी लेवल पे ले गए, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर। सो बीएमबीएस हमें नहीं रही अब, एनी हाउ उसकी यादें हैं हमारे साथ। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने बीएमबीएस मुझसे पढ़ी है? एनीवन हु हैज टेकन बीएमबीएस फ्रॉम मी, एनीवन?
ओके, हसनैन ने पढ़ी है, ग्रेट, फातिमा ने पढ़ी है, जबरदस्त, good, Shiza. So it means that I have some of my old students. Wonderful, thank you very much for trusting me again, for putting your trust in me again. Anyhow, so wonderful, mashallah, mashallah, zabardast. Jazakallah janab, it's an honor to have you here. Great. सो पोजीशन को इवैल्यूएट करना, अपनी करंट पोजीशन को समझना, ताकि अकॉर्डिंगली अपनी चॉइसेस को ले डाउन कर सकें, अपनी चॉइसेस को क्राफ्ट कर सकें. सो पहला चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. पहले चैप्टर का हम आगाज करते हैं बाय डिफाइनिंग द टर्म स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी को मुख्तलिफ वेज में डिफाइन. अच्छा, अब अगेन वीडियो सबको क्लियर आ रही है? हसीब की वीडियो लैग कर रही है अकॉर्डिंग टू हसीब. आई होप कि सबकी बाकी क्लियर है. बहुत दफ़ा सिग्नल भी ड्रॉप हो जाते हैं, दिस इज अ पॉसिबिलिटी. सभी की लैग हो रही है. देन देयर माइट बी सम नेटवर्क इशू एट माय एंड. हो जाती है ऐसे. ग्रेट, चलें. सो अच्छा, पेपर में एग्जामिनर आपसे कभी भी स्ट्रेटजी को स्ट्रेट अवे डिफाइन करने को नहीं कहेगा. अगेन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को आपने याद कैसे रखना है, दैट इज एन आर्ट. अब वो मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेटजी की सबसे पुरानी डेफिनेशन दी थी शैंडलर ने. शैंडलर 1962 में डिफाइन करता है कि स्ट्रेटजी क्या है. डिटर्मिनेशन है लॉन्ग टर्म गोल्स की, लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करना, और फिर एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाना, फिर एक कोर्स ऑफ एक्शन को डेवलप करना, ताकि आप उन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर कैरिंग आउट दोज गोल्स. तो शैंडलर के मुताबिक स्ट्रेटजी क्या है? व्हाट टू अचीव, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करना, कोर्स ऑफ एक्शन बनाना, हाउ टू अचीव, and bringing resources aligned with those with those course of actions through which you are going to achieve that goal. दो एग्जामिनर आपसे पेपर में शैंडलर की डिफाइन करदा डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए आपको कि शैंडलर डिफाइन करता है स्ट्रेटजी को एज. अब इस डेफिनेशन को आप अपने वर्ड्स में पुट कर सकते हैं. मेक श्योर कि ये कीवर्ड्स आपने यूज लाजमी करने. डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, a course of action to achieve those objectives and goals, and allocation of resources so that the goals and objectives can be achieved precisely and effectively. ये तीन कीवर्ड्स आप यूज करें, आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी. द बेसिक डेफिनेशन, द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी जो कि शैंडलर ने ऑफर की थी, वो डेफिनेशन आपकी पूरी हो जाएगी अगर आप ये तीन कीवर्ड्स यूज कर लें. अच्छा, इसके आगे आया फिर पीटर ड्रकर. पीटर ड्रकर ने आके दुनिया को कहा कि ठीक है, स्ट्रेटजी नहीं, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल के लिए स्ट्रेटजी नहीं होती. होती है स्ट्रेटजी, टैक्टिकल ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होती है, लेकिन आइडियली स्ट्रेटजी का जो कॉन्सेप्ट है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है. नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टैक्टिक्स का. टैक्टिक्स कहते हैं शॉर्ट टर्म मूव्स को, जिससे आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स पूरे करते हैं. इसे टैक्टिक कहा जाता है. टैक्टिक आप कह लें इज अ शॉर्ट और क्विक नोशन ऑफ स्ट्रेटजी. टैक्टिक इज अ क्विक नोशन ऑफ स्ट्रेटजी, लेकिन आइडियली हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेटजी का लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए. अभी आगे जाके बात करेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स का डिफरेंस क्या होता है. अच्छा, ड्रकर क्या कहता है? ड्रकर भी कहता है कि स्ट्रेटजी क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन है. यहाँ वो नाम देता है पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज का. इट्स कोर्स ऑफ एक्शन. क्यों बनाते हैं? ताकि अचीव कर सकें अपने ऑब्जेक्टिव्स को. ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट. हाँ, एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ड्रकर बताता है कैसे अडेप्ट करके अपने स्कोप को, अपने रिसोर्सेज को टू द एनवायरमेंटल चेंजेस. नाउ दिस इज समथिंग न्यू. ड्रकर के मुताबिक एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है और हमें अडेप्ट करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को, हमें अडेप्ट करना पड़ता है अपने ऑपरेशंस को, अपने स्कोप को, ताकि हम एक पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज और कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू अपने गोल्स को अचीव कर सकें. सो ड्रकर की डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई. अगेन आई वुड से कि आपने ये डेफिनेशन याद नहीं करनी, लेकिन कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी किस चिड़िया का नाम है. और इसके लिए कीवर्ड्स को, फिर इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, अपने शॉर्ट हैंड नोट्स बनाया करें. फॉर एग्जाम्पल, हेडिंग दे स्ट्रेटजी की, आगे ब्रैकेट में लिखें शैंडलर फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे 3 कीवर्ड्स लिख लें. ये पूरा सेंटेंस 3 कीवर्ड्स में आपने इनकैप्सुलेट कर लिया, और इसके ऊपर चेरी एट द टॉप, इसके ऊपर क्या होगी? आपका एक्सप्रेशन. आप लिखते कितना अच्छा है इसको. ठीक है, इसकी जो नफासत है इन 3 कीवर्ड्स की,
वो आएगी किस चीज से? आपके एक्सप्रेशन से। इसीलिए फिर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है, प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 700 सफ़े की किताब है आपकी। आई विल नेवर एक्सपेक्ट कि ये 700 सफ़ा भी याद कर लें, क्रैम कर लें, पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो करना क्या है? करना ये है कि कीवर्ड्स को मेमोराइज करना है, टॉपिक की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है और उसको फिर प्रैक्टिस करना है। दिस इज द ओनली वे in which you are going to pass this paper. There is no other way in which you are going to pass the paper. अगर आप इस पेपर को पास करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो ड्रकर के मुताबिक स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज का नाम है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी को। चूंकि एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है, इट मींस कि स्ट्रैटेजीज कैन नॉट बी रिजिड, फिक्स नहीं हो सकती। स्ट्रैटेजीज को भी आपको चेंज करना पड़ता है, आगे जाके पढ़ेंगे अभी। एक होती है इमरजेंट स्ट्रैटेजी। इमरजेंट स्ट्रैटेजी वो जो एनवायरमेंटल चेंज से निकलती है, जब एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है उसके मुताबिक जब आप कोई स्ट्रैटेजी निकालते हैं। बड़ी जीती जागती मिसाल है इसकी, अभी मैं, हाँ एग्जैक्टली ऐसा अभी इसकी मिसाल देता हूँ। जीती जागती इसकी मिसाल है कोविड-19। कब दुनिया ने सोचा था कि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस इतने अफेक्ट हो जाएंगे? ठीक है, कोविड-19 आया, रिटेल सेक्टर दुनिया में तबाह बर्बाद हो गया क्योंकि दुकानें बंद हो गई, आउटलेट्स बंद हो गए। अब जो रिटेल आउटलेट्स जो हैं, जो बिजनेस ई कॉमर्स पे ले गए अपना बिजनेस, दे मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट। इसे कहते हैं एडेप्शन, अडेप्ट कर लेना। यानी पहले बिजनेस स्कोप क्या था आपका? आपका पहला स्कोप था बिजनेस का क्या? फिजिकल आउटलेट, यहाँ पे कस्टमर आके बाइंग कर रहा है। अब कोविड आया और कोविड में आपने क्या किया? अडेप्ट किया अपने आप को, एंड यू ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म्ड। 8 से 2 साल पहले जो बिजनेस ई कॉमर्स एक्टिविटीज के थ्रू बिजनेस नहीं करता था तो कामयाब हो जाता था प्रॉबेबली, लेकिन आज अगर कोई बिजनेस ई कॉमर्स को अडॉप्ट नहीं करता तो वो नाकाम है, वो कामयाब नहीं हो सकता। इसे कहते हैं अडेप्टेबिलिटी, ढल जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। Listen, you got it? This is called as adaptation. और बिजनेस के स्कोप को आपको अडेप्ट करना पड़ता है विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट? सो डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, डिफरेंट थिंग्स करनी होती हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस के मुताबिक आप अपने आप को चेंज करते हैं। तो ड्रकर की डेफिनेशन में एनवायरमेंटल चेंज वाला कंपोनेंट नए ऐड हो गया। इसके बाद दौर आया जेएसडब्ल्यू का 1980s में। जेएसडब्ल्यू ने, जॉनसन स्कोल्स एंड बिटिंगटन ने, बड़ा मशहूर नाम है, आगे 2-3 दफा और आएगा। इन्होंने किताब लिखी एक्सप्लोरिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। इन्होंने एक बुक लिखी स्ट्रैटेजी के ऊपर। इस किताब में इन्होंने डिफाइन किया स्ट्रैटेजी को एक और मैनर में। इन्होंने ड्रकर की डेफिनेशन के अंदर भी कुछ वैल्यू ऐड की। स्ट्रैटेजी क्या है? डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर लॉन्ग टर्म, वही गोल एंड ऑब्जेक्टिव ओवर द लॉन्ग टर्म। हाँ, यूनिकनेस दैट थ्रू विच you achieve advantage in changing environment by configuring your resource and competencies with the aim of fulfilling stakeholder expectations. इनकी डेफिनेशन में दो चीजें नहीं है, नंबर 1 competitive advantage और नंबर 2 stakeholder expectations। बाकी बातें सारी वही हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने का प्रोसेस, बाय डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, बाय कॉन्फ़िगरिंग रिसोर्सेज, बाय अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, ताकि आप कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकें, ताकि आप सुपीरियर हो सकें दूसरों से। और क्यों ये सब कुछ करना है? ताकि स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकें। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इनकी डेफिनेशन में इंटरेस्टिंग है। So this definition has similarities by the way Drucker defined strategy. However, strategy is used to create competitive advantage. इस पे आगे जाके हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, सॉरी 4 के अंदर, 4 चैप्टर के अंदर इसमें हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। Competitive advantage is the superiority a firm has over its competitors. Competitive advantage क्या होता है? वो superiority जो एक इदारा हासिल करता है अपने competitors के ऊपर, इसे कहते हैं competitive advantage। नेस्ले की 4 गैलन की 19 लीटर की पानी की बोतल बिकती है 270 रुपए की। 270 रुपए की जी। इसाक, आई जस्ट आंसर योर क्वेश्चन। गोरमे की 4 गैलन की 19 लीटर्स की पानी की बोतल बिकती है 110 रुपए। नेस्ले और ऑन एवरेज जो बॉटल्ड वाटर है जो डिस्पेंसर पे हम लगाते हैं, ऑन एवरेज इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपए है। ठीक है, नेस्ले 270 की बेचता है, ऑलमोस्ट मतलब 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना। Why? Give me one good reason. हाँ, Nestle has a brand. Very right.
नेस्ले के पास क्या है? ब्रांड। ठीक है, अब आगे जाके बढ़ेंगे, मार्केटिंग का पूरा टॉपिक आएगा ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर। और ये ब्रांड जो है ये कैसे पैदा हुआ? गुडविल से पैदा हुआ। गुडविल कैसे पैदा हुई? गुडविल के पीछे क्या है? वन वर्ड आंसर, गुडविल के पीछे क्या है? व्हाट इज बिहाइंड गुडविल? वन वर्ड आंसर। ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? क्वालिटी से बिल्ड हुआ। थैंक यू वेरी मच अजहर साहब, क्वालिटी से बिल्ड हुआ। क्वालिटी। So quality is the competitive advantage of Nestle. Yes, quality is the competitive advantage of Nestle, through which Nestle has built a brand, right? Competitive advantage is basically doing something better than your competitors. सिर्फ आप कर सकें, कोई और ना कर सके, that is competitive advantage, right? देखें ना आप, माशाल्लाह, इस मैं देख रहा था अभी का आज ही क्लास की स्ट्रेंथ, तो एक अच्छी हैंडसम स्ट्रेंथ है हमारी क्लास की, ठीक है। And of course, you are paying a premium price to be here. Like you might have other cheaper options available, but you are paying a price premium because you believe that you might be delivered quality, you might be delivered some good service, right? You might get a better chance to pass the paper, right? ये तमाम चीजें क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे कंपैटिटिव एडवांटेज पैदा होता है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट नॉट बी टू मेयरली सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द शेयर होल्डर। सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि ब्रॉड लेवल पे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना होता है। ये स्टेक होल्डर का टॉपिक इसी चैप्टर में आगे आएगा, विल टॉक अबाउट इट। हाँ जी, कॉम्पिटेंसीज कहते हैं हैविंग एनफ रिसोर्सेज टू अचीव अ टारगेट। कॉम्पिटेंसी का भी एक टॉपिक पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, जब इंटरनल रिसोर्सेज की बात करेंगे। कॉम्पिटेंसी कहते हैं रिसोर्सेज दैट वुड मेक यू एबल टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ये कॉम्पिटेंस होती है। फॉर एग्जांपल, पैक ऑनलाइन क्लास ऑफर कर रहा है, पैक ऑनलाइन क्लास ऑफर कर रहा है, अब पैक के पास कॉम्पिटेंसीज ही नहीं है, ऑनलाइन रिसोर्सेज ही नहीं है, कैमरा नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, ये नेटवर्क नहीं है, तो इट मींस पैक इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डिलीवर अ सर्टेन सर्विस। कंपैटिटिव एडवांटेज बहुत सारी चीजों पे बेस कर सकते हैं। यस, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन कॉस्ट। यस, चाइना को देख लें, अब चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स जो हैं, दे लीड द वर्ल्ड ऑन लो कॉस्ट, ठीक है। सो कंपैटिटिव एडवांटेज डज नॉट नेसेसरली ओनली कम्स ऑन द बेसिस ऑफ अ ब्रांड और क्वालिटी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट भी एक फैक्टर, कॉस्ट भी एक फैक्टर है। बल्क लार्ज स्केल पे आप प्रोड्यूस करके, आप अपनी कॉस्ट को कम करके, यू कैन ऑल्सो एक्वायर कंपैटिटिव एडवांटेज। जितनी कॉस्ट पे आप प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज, आपका कंपैटिटर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, दैट इज ऑल्सो कंपैटिटिव एडवांटेज, राइट। देखो ना, हाई प्राइस, व्हाई वुड कस्टमर पे अ हाई प्राइस? Why would customer pay a high price when customer might have available cheaper alternatives? ये देखना है ना, तो हाई प्राइस इज नॉट अ कंपैटिटिव एडवांटेज। वो हाई प्राइस आप किस बुनियाद पे चार्ज कर रहे हैं, दैट इज योर कंपैटिटिव एडवांटेज, राइट। हाई प्राइस अपने आप में नहीं है कंपैटिटिव एडवांटेज, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, स्विचिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। अगर ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल नहीं है तो स्विचिंग कॉस्ट आपकी बहुत हाई है। ये भी डिस्कस करेंगे 5 फोर्सेस मॉडल में। आई एम ग्लैड कि माशाल्लाह आपके जहन में इंटरेस्टिंग थॉट्स इमर्ज हो रही हैं, बट वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, व्हाटएवर क्वेश्चंस आर बीइंग पोज्ड हियर, हम इसमें एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। वेरी राइट। हाँ, जब प्रोडक्ट आप किसी खास कस्टमर क्लास को बेच रहे होते हैं, फिर प्राइस मैटर ही नहीं करती, ठीक है ना। फिर ब्रांड मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है, प्राइस नेवर मैटर्स, प्राइस मैटर ही नहीं करती, ठीक है, प्राइस नेवर मैटर्स। सो यस, there are variations, there are varying things that play a pivotal and important role in overall achievement of a business objective and a target. Anyhow, ये एक मिसाल देखें। अब ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की और एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज करने की। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। एक कंपनी है जो कि ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करती है और सप्लाई करती है, ठीक है। नाउ दे आर कंसिडरिंग देयर फ्यूचर बिजनेस डायरेक्शन ओवर द नेक्स्ट 10 years। वो अगले 10 साल के लिए अपने बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को देख रहे हैं। दे आर वेरी मच अवेयर कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले कल में पब्लिक और पॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ जाएं अबाउट द एनवायरनमेंट, एंड माइट बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट कोई नए लॉज लगा दे कि नहीं जी, अब आप नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, अब आप कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाएंगे। सो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने अब एक फॉलोइंग ब्रॉड स्ट्रेटजी बनाई है।
उन्होंने कहा कि हम ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, बट वी विल सब्सटेंशियली इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय विंड एंड बाय सी, हाइड्रल पावर या विंड पावर। ठीक है, हम सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन भी करते रहेंगे। दिस मूव फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज रिकॉग्नाइज द प्रोबेबिलिटी दैट पब्लिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर विल ग्रो फॉर रिस्ट्रिक्शन। नाउ दिस इज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस, दिस इज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। डाउन द लेन 10 ईयर्स को देख रहे हैं कि 10 साल में क्या हालात होंगे, दिस इज लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म। What course of action they are going to adopt? Course of action क्या adopt करने जा रहे हैं, ये course of action है उनका। We will continue to extract oil and gas, but we will heavily invest in course of action, sorry, but we will heavily invest in renewable energy sources. और environmental impact कहाँ से आया? Growing public and political concerns about the environment, greenhouse gases पैदा हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल डिसबैलेंसेस पैदा हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, लेट्स से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ फॉर लॉन्ग टर्म। अब जो उनका स्ट्रेटेजिक प्लान होगा वो अब बताएगा कि रिसोर्सेज कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, वो बताएगा कि किस तरह से हम एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डेवलप करेंगे फ्रॉम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन है ऐसा। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इट इज अ कंपैटिटिव एडवांटेज बट नॉट एन एथिकल वन। यस भाई, आपके पास एक रिसोर्स का कंट्रोल है, आपके पास एक रिसोर्स का कंट्रोल है, ठीक है, एंड नाउ यू आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, तो यस यू आर एंजॉयिंग अ कंपैटिटिव एडवांटेज बट दैट इज नॉट एन एथिकल एज। अभी मरी का वाकया देख लें, मरी में क्या हुआ, यही सुनने में आया ना, मरी में जनाबे अली के 800 रुपए की ब्रेड बेची है, 50-50 हज़ार रुपए का एक थर्ड क्लास कमरा रेंट आउट किया, 500 का दूध का डब्बा बेचा है बच्चों का, दूध का डब्बा 500 का बेचा। क्यों? क्योंकि उनके पास ये एडवांटेज था कि लोगों की मजबूरी थी, सो दे हैव जस्ट स्क्वीज्ड द अपॉर्चुनिटी। हाँ, 500 रुपए का उबला अंडा बेचा, एक अंडा, राइट, सो दे हैड दिस अपॉर्चुनिटी। This is shameful, yes. So this is an unethical act of competitive advantage. This is unethical act of being competitive. शुतुरमुर्ग का नहीं था, मुर्गी का ही था। शुतुरमुर्ग का भी 500 का नहीं आता होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, वेरी हाउ। सो नाउ सी, दिस इज हाउ अ स्ट्रेटजी। अब वो आगे जाके फिर इसकी स्ट्रेटजी को मजीद रिफाइन करेंगे, जी रिसोर्सेज कितने चाहिए, पैसा कितना चाहिए। ठीक है, दैट वुड डिपेंड अपॉन कि उनका विजन क्या है, how much proportion of the total energy they are going to shift from non-renewable to renewable energy sources। ठीक है, राइट। सो अब ये तमाम चीजें फिर यहाँ पे वो अपने प्लानिंग का हिस्सा बनाएंगे। सो स्ट्रेटेजिक प्लान इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप lay down करते हैं, put down करते हैं in order to see that how a strategy is going to be implemented। ठीक है, तो strategic plan जो होता है that is a long term plan that talks about how a strategy is going to be formulated and how it is going to be implemented। strategy के 3 levels होते हैं, very important topic, डायरेक्टली तो नहीं आया पेपर में, लेकिन एक दफा बैक इन 2017 एक दफा इसको हल्का सा टच किया था एक सवाल में एग्जामिनर ने, इस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, बट 2017 में, बैक इन 2017 देयर वाज अ स्लाइट ब्रश ऑफ। ये एक्चुअली अभी मैं अपना कंप्यूटर यूज नहीं कर रहा, आई एम यूजिंग द लैपटॉप ऑफ दिस आईटी सेटअप, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फाइल्स की एक्सेस बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, वरना मैं आपको साथ साथ फाइल्स में ओपन करके दिखाऊं। तो मैंने इनको अपना फोल्डर दे दिया है पूरा, तो होपफुली दे माइट बी लोडिंग माय फोल्डर ऑनटू दिस सिस्टम बाय टुमारो, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी फौरन पास पेपर पे जाना, फौरन चैप्टर पे आना। तो अभी मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हूँ अपनी फाइल्स को लेके। स्ट्रेटजी के 3 लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है पूरे इदारे की, होल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस की डायरेक्शन सेट करती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में आप बताते हैं इदारे का पर्पस क्या है, इदारे का मिशन क्या है, इदारे का स्कोप क्या है। अभी एक क्वेश्चन भी आया था ऊपर स्कोप का, सॉरी आई जस्ट मिस्ड द क्वेश्चन। स्कोप, स्कोप कहते हैं व्हाट नेचर ऑफ बिजनेस यू आर गोइंग टू वर्क इनटू। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खोलना चाहते हैं,
अब ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप रेल नेटवर्क भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप बस नेटवर्क भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप प्राइवेट ये कैब नेटवर्क भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, कि हमने सिर्फ बस नेटवर्क ऑपरेट करना है, तो ये स्कोप है आपके बिजनेस का। रेंज ऑफ बिजनेस, स्कोप कहते हैं रेंज ऑफ बिजनेस को, रेंज ऑफ बिजनेस को, राइट, दैट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ बिजनेस। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, अब एफएमसीजी के अंदर आप अपना स्कोप डिफाइन करते हैं कि आप कितनी प्रोडक्ट लाइंस बनाएंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट लाइंस यू आर माइट बी इंटरेस्टेड इन। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक एफएमसीजी कंपनी सारी की सारी प्रोडक्ट लाइन बनाती। फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी एफएमसीजी है, नेस्ले भी एफएमसीजी, लेकिन नेस्ले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर डोमिनेट करती है मार्केट को एडिबल प्रोडक्ट्स में, खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स में। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है ये डोमिनेट करती है मार्केट को नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स में, सोप्स में, शैम्पूज में, ये फेस वॉश में फॉर एग्जांपल, ठीक है, पैम्पर्स में, ठीक है, पीएनजी का ब्रांड है पैम्पर्स, राइट। अब ये उनका स्कोप है, हैं दोनों एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर, हैं दोनों एफएमसीजी के अंदर, लेकिन उन दोनों का जो स्कोप है वो डिफरेंट है, उन दोनों का जो स्कोप है वो अलग अलग है। नेस्ले का स्कोप क्या है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड के अंदर, एडिबल प्रोडक्ट्स। और अपना इफ यू टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो पीएनजी का स्कोप क्या है मार्केट के अंदर, दे प्राइमरीली फोकस ऑन व्हाट वी से नॉन एडिबल प्रोडक्ट, ये स्कोप होता है। फिर मैचिंग द बिजनेस एक्टिविटी विद योर एनवायरनमेंट, ये काम भी हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में करते हैं, जो ऊपर अभी हमने बात की एग्जांपल में, वो जो ऊपर हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। जो भी हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस की है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ठीक है, दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने बिजनेस को अलाइन करना, अपनी एक्टिविटीज को अलाइन करना, कस्टमर्स की नीड्स को देखना, बिजनेस की अवेलेबल रिसोर्सेज को समझना, ठीक है, एंड देन मैचिंग द पर्पस ऑफ द एंटिटी विद द स्टेक होल्डर्स। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में नॉर्मली 4 चीजें आती हैं। वी फोकस ऑन 4 थिंग्स। नंबर 1, वी फोकस ऑन द ओवरऑल पर्पस ऑफ द एंटिटी, इदारे का पर्पस क्या है। नंबर 2, व्हाट स्कोप ऑफ द एंटिटी इज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, इदारा किस किस्म की एक्टिविटीज में अपने आप को ऑपरेट करेगा। नंबर 3, एनवायरनमेंट के मुताबिक इदारा कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। और नंबर 4, इदारा कैसे स्टेक होल्डर्स के साथ मैच करेगा अपनी एक्टिविटीज को। स्टेक होल्डर्स में 2 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स होते हैं। एक ओनर्स एक्सपेक्टेशंस होती है, विच इज ऑफ कोर्स अ नैरो फोकस, ये नैरो फोकस है, ठीक है। कुछ बिजनेस वो होते हैं जो सिर्फ ओनर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं, ग्रेटर गुड को भूल जाते हैं, ठीक है ना। लाइक ओनर एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मेनली द बिजनेस शुड ग्रो फाइनेंशियली ओवर टाइम, प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस ओनर्स जो होते हैं इनका मेन कंसर्न होता है बिजनेस के प्रॉफिट्स। ओनर्स जो होते हैं इनका मेन कंसर्न होता है हाउ टू मेक द बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल, हाउ टू मेक द बिजनेस इन अ बेटर शेप। लेकिन फॉर एग्जांपल अदर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की ख्वाहिश होगी कि बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, बिजनेस अपने सारे एम्प्लॉयमेंट लॉस पूरे करे, टैक्स पे करे। कस्टमर की ख्वाहिश होगी कि उसे क्वालिटी प्रोडक्ट मिले एट अफोर्डेबल प्राइस। सप्लायर की ख्वाहिश होगी कि उसके साथ एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस डेवलप की जाएं, उसे टाइम पे किया जाए। So every stakeholder will have a different set of expectations. Every stakeholder would have a different set of expectations to be managed, right? So किसी भी business organization के लिए, किसी भी business के अंदर आपके जो stakeholders होते हैं, उनका बड़ा important role होता है that how the stakeholders needs are going to be satisfied and how the stakeholders would be managed in a better way, ठीक है। तो stakeholders की needs को satisfy करना, stakeholders को देखना, स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना, ये तमाम चीज़ें आपकी बिजनेस के एक इम्पॉर्टेंट व्हाट यू से सो उसमें स्कोप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज में कवर हो जाती हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, दे प्ले अ वेरी पिवटल रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट द बिजनेस वर्क्स विद द राइट स्टेक होल्डर। और आपको पता है स्टेक होल्डर्स जो होते हैं इनकी जो नीड्स हैं ये लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ को इंश्योर करती है। जी, शेयर होल्डर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स के राइट्स भी होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स आर द स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के राइट्स अलग होते हैं स्टेक होल्डर्स के। शेयर होल्डर्स का वाहिद राइट होता है मॉनिटरी कंसर्न, और उनका कंसर्न भी सबसे ज्यादा पैसा ही होता है। मतलब राइट्स तो और भी होते हैं खैर,
लेकिन उनका जो कंसर्न होता है, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो मॉनिटरी होती है। नहीं, यहाँ पे डिफरेंट नहीं लिखा बेटा, यहाँ पे ओनर्स एक्सपेक्टेशंस और स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है ना। शेयर होल्डर का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शेयर होल्डर्स प्राइमरली बिजनेस ओनर्स में काउंट हो जाते हैं। स्टेक होल्डर की बात हो रही है, शेयर होल्डर की बात नहीं हो रही, स्टेक होल्डर की बात हो रही है। स्टेक होल्डर इज एनी ग्रुप दैट वुड बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज एंड हाउ इट ऑपरेट्स। एक इदारा क्या करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, हाँ हाँ देखो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये टॉपिक आएगा आगे, हमारा पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, because the business has to develop a positive repute in the overall marketplace. अगर आप सिर्फ खास ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स को सर्व करते रहेंगे, so that would cast a negative impact on the business activities and its repute. जो कि आपको अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है, तो आपको मुआशरे का एक रिस्पेक्टेबल एलिमेंट बनना होता है, तो इसलिए आप स्टेक होल्डर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। Because stakeholders can have an impact on the business. Public है, for example, public आपको negatively publicize कर सकती है, ठीक है ना। Customers हैं, customer can stop buying from you if you're not going to address to their needs. तो stakeholders बड़ा important role play करते हैं, इसमें टॉपिक आएगा पूरा। Next we have business strategy. Business strategy वो जो एक business unit के लिए बनाई जाती है। For example, नेस्ले का एक business unit है milk and dairy products. नेस्ले का एक business unit है milk and dairy products. अब milk and dairy product की अपनी strategy होगी। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट जो है, इसकी इसे एसबीयू भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एसबीयू जो होता है, ये ओवरऑल कॉर्पोरेट एंटिटी का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, जिसकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, इसके अपने गुड्स होते हैं, इसकी अपनी सर्विसेज होती हैं। ये एक एंटायरली एक इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरह काम कर रहा होता है, अ स्मॉल बिजनेस इंडिपेंडेंट अंडर अ मेजर कॉर्पोरेट अम्ब्रेला। फॉर एग्जाम्पल, फोर्ड मोटर्स कॉर्पोरेशन की कार डिवीजन जो है, ठीक है, फोर्ड मोटर्स कॉर्पोरेशन की और डिवीजन्स भी हैं, ठीक है। इनके पास इंडस्ट्रियल डिवीजन भी है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, गाड़ियां भी बनाते हैं, तो गाड़ियों की एक अलग डिवीजन है, ठीक है। इन्होंने एक नया मॉडल गाड़ी का लॉन्च किया, एम्ड एट फ्लीट कार बायर्स who had not favored Sierra its predecessor. फ्लीट कार बायर्स मीन जो गाड़ियों का पूरा फ्लीट परचेज करते हैं कोई इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, लोडिंग के लिए, इसे कहते हैं बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी। देन वी हैव ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी जो होती है, फंक्शनल स्ट्रेटजी, ये हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी होती है। मार्केटिंग की अपनी होगी, एचआर की अपनी होगी, फाइनेंस की अपनी होगी, ये हर डिपार्टमेंट की अपनी स्ट्रेटजी होती है। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या है? ओके फाइन, आई कैन स्लो डाउन अ बिट, लेकिन चूंकि हमारा कंटेंट जो है वो काफ़ी है कवर करने वाला, आपके जहन में जैसे क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन टाइप करना शुरू करने से पहले, इसका आसान हल ये है, क्योंकि मुझे नहीं पता होता, वो फिजिकल क्लास हो तो मैं चेहरे के तासुरात देख के अंदाजा लगा लेता होता हूँ। इसका हल ये है कि आपके पास यहाँ पे ऊपर हैंड रेज करने की ऑप्शन मौजूद है। जस्ट रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कर दें, फिर आराम से टाइप करें, मैं 2 सेकंड का पॉज दे लूँगा, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली सवाल जहन में आता है, आप उसे टाइप करते हैं, और जब तक आप टाइप करते हैं आपका दिमाग भी डेविएट हो जाता है, और टाइप करते करते मेरी बात अंडरस्टूड है कि आपके माइंड से स्किप हो जाती है। तो जैसे ही सवाल आए जहन में, फौरन हाथ खड़ा कर दिया करें। जैसे ही हाथ खड़ा करेंगे, मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं उसी वक्त पॉज ले लूंगा, और मैं आपका नाम पुकार के आपसे कहूंगा जी अब आप पहले सवाल पूछें, ठीक है। हर चीज़ का हल मौजूद है, दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसका सोल्यूशन ना हो, so we need to look at the solution. फंक्शनल स्ट्रेटजीज वो होती हैं जो डिपार्टमेंटल लेवल पे बनाई। अच्छा, अब ऐसा सवाल पूछो, अगर कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन। अच्छा, उमर ने क्वेश्चन पूछा, बिजनेस स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट मैनेजमेंट बनाती है या कॉर्पोरेट लेवल? नहीं, बिजनेस यूनिट मैनेजमेंट बनाती है बेटा। हाँ, कॉर्पोरेट लेवल के साथ अलाइंड होती है, कॉर्पोरेट लेवल के साथ अलाइंड होती है, लेकिन बनाती बिजनेस यूनिट लेवल मैनेजमेंट ही है। डिविजनल मैनेजर, बेसिकली डिविजनल मैनेजर जो होता है वो जिम्मेदारी उठाता है इसकी। सो डिविजनल मैनेजर takes the responsibility of this, right? All right. Okay, so
फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज हर डिपार्टमेंट की। मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है कि मार्केटिंग वाले कहते हैं कि जनाब हमने क्वालिटी इंप्रूव, अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करनी। रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा, देखें यार आपका यहाँ पे, आप ऊपर जाएं ना, ये इधर जहाँ मोर लिखा हुआ है, मोर में देखें, यू माइट फाइंड रेज हैंड ऑप्शन, कहीं ना कहीं आ रहा होगा, आता है इसके अंदर, चेक करें। क्योंकि मेरी कंट्रोल बार जो है वो एडमिन वाली है, आपकी कंट्रोल बार जो है वो और होगी रिएक्शंस में। हाँ, रिएक्शंस के अंदर यस, रेज हैंड रिएक्शंस में है ऑप्शन, यस रिएक्शंस में। हाँ जी, शर्जील ट्राई किया है कि सवाल पूछना? हाथ खड़ा करने का शौक पूरा किया है या क्वेश्चन ट्राई किया चलें, गुड। अब दोबारा क्लिक करें ताकि आपका हाथ नीचे हो जाए, रेज हैंड ऑप्शन को अनरेज कर दें, ठीक है, दोबारा क्लिक कर दें, अनरेज हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, ओके। सो जैसे मार्केटिंग वाले कहते हैं हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी। अच्छा, प्रोडक्शन वाले कहते हैं कि हमने अपनी स्पीड ऑफ प्रोडक्शन एनहांस करनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है प्रोडक्शन की, ये उनकी स्ट्रेटजी। सप्लाई चेन वाले कहते हैं कि हमने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर करना है ताकि प्रोडक्ट की जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ रहे, ये उनकी स्ट्रेटजी है। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी होती है। For example, revising delivery schedule and driver hours to improve customer service, recruiting a German-speaking salesperson to assist a UK company's sales drive in Europe. ये departmental level strategies हैं। अभी जो पहली strategy है, that might be a better strategy of supply chain management. Supply chain की strategy है जिसमें delivery schedules को बेहतर कर रहे हैं ताकि आपकी transition बेहतर रहे। Second strategy क्या है? Recruiting a German-speaking salesperson, ये to assist a UK company सेल्स ड्राइव इन यूरोप, ये सेल्स की स्ट्रेटजी हो सकती है। दैट माइट बी अ स्ट्रेटजी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट के। सेल्स डिपार्टमेंट ने एक जर्मन ट्रांसलेटर को हायर किया कि वो जो बंदा जर्मन लैंग्वेज बोलता है उसकी सेल्स इंक्वायरी को सर्व कर सके। द बाउंड्रीज ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज आर वेरी इनडिस्टिंक्ट, बहुत ओवरलैप करती, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग एंड द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Overall corporate planning is concerned with the scope of the whole organization, ठीक है, and matching those scope with the environment is the responsibility of the top management. तो ये तीनों के तीनों जो strategies के levels हैं ये aligned हैं आपस में ये आपस में aligned हैं। हाँ, ये business unit level strategies हैं, ये आगे जाके पढ़ेंगे हमने, ये मैंने इसलिए यहाँ पे mention नहीं की। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, ये बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजीज है, यहाँ पे आते हैं, दे आर बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजीज। इस पे आगे जाके हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, तो देयर वाज रिपीटिशन ओवर हियर, तो मैंने इसलिए इनको यहाँ से स्किप कर दिया। ये बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजीज है, गॉट इट? ओके, ग्रेट। ओके जी, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? अच्छा, हर क्लास के एंड पे हम एक नट शेल में अपने लेक्चर को क्लब किया करेंगे। लर्निंग आउटकम्स मैं आपको बताया करूंगा, दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फ्यू अटेम्प्ट्स बैक, और ये चीज़ बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। लर्निंग आउटकम्स, एलओज जिन्हें कहते हैं। आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? पहला लर्निंग आउटकम है आज का सिलेबस ग्रिड। सिलेबस ग्रिड समझ आनी चाहिए, एंड स्कोप ऑफ द सिलेबस, ओवरऑल एसपीएम का स्कोप समझ आना चाहिए। पीडीएफ मिल जाएगी आपको बेटा, आई विल शेयर स्कोप ऑफ द होल सिलेबस। दूसरा लर्निंग आउटकम क्या है आज का? स्ट्रेटजी की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। तीसरा लर्निंग आउटकम क्या है आपका? ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये खैर इसे हम तफसील में कल भी देखेंगे, लेकिन आज हमने इसका एक ब्रॉड सा ओवरव्यू लिया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का इन माइंड मैप। इसे एज अ टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। और चौथा लर्निंग आउटकम है आपका आज का लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। तो आज के लेक्चर के हमारे 4 लर्निंग आउटकम्स हैं। आज के लेक्चर के बाद अगर आपकी ये 4 अंडरस्टैंडिंग्स, ये 4 चीज़ें क्लियर हैं, तो समझें लेक्चर का मकसद पूरा हो गया। और आज के लेक्चर के इख्तिताम पे अगर इन 4 में से
कोई एक या दो या अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ों में ही मसाइल हैं, तो इट मीन्स के लेक्चर का मकसद पे पूरा नहीं हुआ। तो हर लेक्चर के एंड पे मैं आपको लर्निंग आउटकम्स बताया करूंगा उस लेक्चर के, और उन लर्निंग आउटकम्स को सामने रख के आप अपनी रीडिंग और अपनी रिवीजन करेंगे, और ताकि ये एक मेट्रिक भी है, इट्स अ मेट्रिक एज वेल, ये एक टेस्ट भी है, एक मेट्रिक भी है टू आइडेंटिफाई दैट हाउ मच हैव यू लर्नड, आपका लर्निंग इफेक्ट क्या रहा। तो ये एक किस्म की मेट्रिक भी है टू डिटरमिन योर लर्निंग इफेक्ट। इस मेट्रिक से आपको अपनी लर्निंग का पता लगेगा, आपकी लर्निंग इफेक्ट क्लियर होगा। ऑलराइट जी, बिल्कुल, बुक अभी रेडिली अवेलेबल है एसपीएम की। इसमें चेन नोट्स मैंने लगा दिए, क्योंकि अगली बुक पब्लिश होने में कुछ वक्त दरकार होगा। तो अगर आपने किताब लेनी है तो उन्होंने किताब को अवेलेबल करवा दिया है, आप समझें कि वो एसपीएम की किताब अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है। जी, एग्जैक्टली इस ओवरव्यू में पोजीशन, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन, ये वही वाला पिरामिड है। दिस इज द पिरामिड ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी पिरामिड, राइट। एनी अदर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? जी उमर, प्लीज गो अहेड, पूछिए सवाल। इसमें भी आता, बीएमएस में आता था। बीएमएस, अब तो एसपीएम में भी ऑफ कोर्स वही फॉलो होगा, उसमें भी बड़ा कामयाब होता था अल्हम्दुलिल्लाह। बुक प्रोबेबली फरवरी में, क्योंकि अभी मैंने चेन नोट्स बना के दिए हैं उनको, एंड दे आर सेंडिंग देम टू द पब्लिशर्स, तो फरवरी में गालिबा उम्मीद है। बड़ा एक आज लेक्चर जो रिकॉर्ड हुआ है इसका टाइम 24 आवर्स होता है, बिफोर 24 आवर्स लेक्चर आपके एलएमएस में अपलोड हो जाएगा। नोट्स अपडेट होते जा रहे हैं, मैं आपको साथ साथ चैप्टर के हैंडआउट्स दे दूंगा, वो अपडेटेड ही होंगे। I'll be sharing chapter handouts with you and they will automatically they are updated। यार ये पूछना पड़ेगा मुझे आईपीसी वालों से, पब्लिशर से, कि वो उसके एग्जैक्ट कोई डेट दे दें, अगर आई विल आस्क देम कि कोई डेट है या नहीं। आई कैप होल हार्टेडली इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट ग्रिड को फॉलो करता है। आई कैप किबले की तरह ग्रिड को फॉलो करता है, बहुत फॉलो करता है। एक अटेम्प्ट में सिर्फ अभी तक आई कैप ने ग्रिड को डेविएट किया है, वो भी जून 2021 में, दैट्स इट। अदरवाइज जो ग्रिड के मार्क्स होते हैं एग्जैक्टली उतने मार्क्स आते हैं, प्लस माइनस भी नहीं होता। तो ग्रिड को फॉलो किया जाता है यहाँ पे, जिस तरह बीएमबीएस में करता था, इफ यू रिमेंबर दैट, बीएमबीएस के अंदर भी ग्रिड फॉलो की जाती थी। यार ये मार्क नोट्स अब पता नहीं ये फाइल सेव यहाँ पे इनके सिस्टम में होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब लैपटॉप पे पढ़ाता हूँ तो मैं तो फाइल सेव कर लेता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये फाइल यहाँ पे सेव हुई है या नहीं हुई है। आई नीड टू चेक इट विद द आईटी गाय। अगर तो ये फाइल सेव हो गई है तो उसमें कहूँगा कि ये मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक। मैं आईटी वाले से पूछ लेता हूँ। आप पहले 7 चैप्टर्स बीएम एस सेकेंड एडिशन से पढ़ सकते हैं विद स्लाइट चेंजेस इन 5, 6 एंड 7 चैप्टर। वो मैं आपको साथ साथ ब्रीफ कर दूंगा, वो मैं आपको साथ साथ ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। चलें जी, उमर आपका सवाल नहीं आया या आ गया आपका सवाल? अच्छा आ गया है, ठीक है, आ गया। सो ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल क्लास है या हफ्ते को क्लास है? टाइम टेबल के मुताबिक चेक करें ज़रा, मुझे मैंने देखा नहीं टाइम टेबल अगली क्लास का। कल है, ओके कल, थैंक यू। तो कल इंशाल्लाह हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, यहीं से आगे चलेंगे, लेवल्स ऑफ प्लानिंग से आगे, सेम टाइम 8:30। एनफ फॉर द डे, हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।